بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ ایل پی جی انڈسٹریز ایسوسی ایشن نے کل ملک بھر میں ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ چیئرمین ایل پی جی انڈسٹریز ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر کا کہنا ہے کہ ایل پی جی کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف پیر کو علامتی ہڑتال ہوگی۔ تمام ایل پی جی دکانیں صبح 8 سے دن 12 بجے تک بند رہیں گی۔ صارفین تک سرکاری قیمت پر گیس کی سپلائی کو یقینی بنایا جائے اور ایل پی جی دکانوں کے خلاف بے جا کارروائیاں بند کی جائیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ کل کی علامتی ہڑتال، ایل پی جی کے سرکاری قیمتوں پہ سپلائی نہ ہونا، سرکاری اہلکاروں کی بدماشی کے خلاف کل 4 گھنٹے کے لیے 12 بجے تک تمام ایل پی جی برادری دکانیں بند رکھے گی۔ حکومت کو یہ میسج دے گی کہ پاکستان میں ایل پی جی ایسوسی ایشن حکومت کے ساتھ ہے، گیس مافیا کے ساتھ۔ کراچی میں گیس بحران ختم نہ کیا جا سکا، شہر کے مختلف علاقوں میں گیس غائب رہنا معمول بن گیا۔ کیماڑی سکندر آباد کے مکینوں کو 1 سال سے گیس بندش کا سامنا ہے۔ ملیر جناح کالونی میں بھی گھنٹوں گیس غائب رہنے لگی ہے، مزید اس رپورٹ میں۔ کو چھٹکارا نہ مل سکا۔ کورنگی، لانڈی، ناظم آباد، اولڈ سٹی ایریا اور ملیر سمیت بیشتر علاقے گیس سے متاثر ہیں۔ سکندر آباد کے مکین بھی گیس بندش کے خلاف پھٹ پڑے، کہتے ہیں 1 سال ہو گیا لیکن گیس کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ منتخب نمائندے بھی مسائل حل کرنے میں دلچسپی نہیں لے رہے۔ مکینوں کا کہنا تھا کہ پورا دن گیس غائب رہتی ہے، اب تو مہنگی ایل پی جی خریدنا بھی مشکل ہو گیا۔ یہاں پر غریب لوگ ہیں، یہاں پہ لکڑی لینا مشکل ہو گیا ہے، ایل پی جی لینا مشکل ہو گیا ہے۔ تو ہمارے یہاں کے جو سیاستدان ہیں، یہاں سے جو ہمارے سے ووٹ لے جاتے ہیں، تو بھی اس پر خاموش ہے کہ ہمارے اس علاقے میں جو لوگوں کی زندگی اجرین بنی ہوئی ہے، سوئی صدروں والے جھوٹ کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ اس طرح جھوٹ بولتے ہیں کہ ان لوگوں نے سارے یہ ایک مافیا ہے۔ گیس کے مسائل نے ملیر جناح کالونی کے مکینوں کا جینا دوبر کر دیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ لمبے بل بیچ دیے جاتے ہیں لیکن ادارہ گیس کا مسئلہ حل کرنے کو تیار نہیں۔ ایسے میں کھانا پکانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تیار ہونے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ ہم لوگ کاموں پہ سے آ جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا گیس آتا ہے نہیں آتا ہے تو پھر کبھی ہوٹل سے لانا پڑتا ہے۔ نہیں صرف کھانا پوری کی جاتی ہے، گیس کے مسائل تو حل کیے نہیں جاتے۔ اگر حل کیے جاتے تو پھر بندے کو پریشانی کیا ہوتی؟ کچھ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ گیس ہی نہیں آ رہی، یہاں پہ ہر بندہ پریشان ہے۔ تو زیادہ تر تو بغیر ناشتے کے جاتے ہیں، اس لیے گیس ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے تو بندہ کیا کرے گا؟ اپنے گھر والوں پہ غصہ تو کر نہیں سکتا نا، وہ تو یہی سوچیں گے یار ڈیوٹی پہ سے لیٹ ہوں گے تو وہاں سے بھی پھر جاب سے بھی جائیں گے۔ ویسے تو شہر کے مختلف علاقے گیس کے مسائل سے دوچار ہیں لیکن سکندر آباد اور ملیر جناح کالونی کے مکینوں نے متعلقہ اداروں سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے، ساتھ ہی گیس بحران ختم کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ کاوش میمن، وسیم افتخار، سٹی 21۔ شہر قائد میں جاری گیس بحران نے شہریوں کی زندگیوں کو آزمائشوں میں دھکیل دیا۔ محمود آباد، سلطان آباد، نارتھ ناظم آباد سمیت دیگر علاقے گیس کے مسائل سے متاثر ہیں۔ تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ کراچی میں گیس کا جاری بحران روز بروز بڑھنے لگا۔ محمود آباد، سلطان آباد، نارتھ آباد، سٹی ریلوے کالونی، رام سوامی، شو مارکیٹ، پرانا گولی مار، عثمان آباد سمیت بیشتر پوش پسماندہ اور مضافاتی علاقے گیس کے مسائل سے متاثر ہیں۔ گیس نہ ملنے پر شہری بھی آپے سے باہر ہو گئے۔ کہتے ہیں دن میں کسی بھی وقت گیس کی بندش یا پریشر میں کمی واقع ہو جاتی ہے جس سے ان کے معمولات زندگی شدید متاثر ہوتے ہیں۔ کھانا پکانے کا عمل دشوار ہو جاتا ہے، لکڑیاں خرید کر ایل پی جی گیس سلنڈر بھروا کر اس پر کھانا تیار کرنا پڑتا ہے۔ متبادل گیس کے ذرائع کے استعمال سے اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ گیس کے بل بھی باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں لیکن گیس مسائل سے چھٹکارا نہیں مل سکا ہے۔ میں محمود آباد رہتا ہوں 6 نمبر، ادھر بہت پریشانی ہوتی ہے، ہم لوگوں کو گیس باہر سے روٹیاں سب کچھ باہر سے لانا پڑتے ہے، وہ بل بھی اتنا آ رہا ہے وہ ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ سلطان آباد میں گیس کی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے اور جس کی بنا پہ دن میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ کبھی چلی جاتی ہے، رات میں بھی، جس کی وجہ سے لوگوں نے سلنڈر وغیرہ اور یہ چیزیں، اور بڑی پریشانی ہے اس حوالے سے کہ ہمارے سلطان آباد میں بہت لوڈ شیڈنگ ہے اور بڑی مشکلات کا سامنا کرنا۔ شہری کہتے ہیں ایس ایس جی سی کے شکایتی مراکز پر صرف خانہ پوری ہی ہوتی ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ترجمان ایس ایس جی سی کے مطابق صارفین کے مسائل کے حل کے لیے لائن پیک کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ کیمرامین گلفام کے ہمراہ وسیم افتخار، سٹی 21 نیوز۔ روشنیوں کا شہر کراچی لوڈ شیڈنگ کے آسیب کی لپیٹ میں، شہر میں جاری 10 سے 12 گھنٹوں بجلی کی آنکھ مچولی نے شہریوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ملیر جی ایریا کے مکین بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے عاجز آ چکے ہیں۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔
बिजली का बहरान, सनतकारों और ताजरों समेत शहरी भी परेशान। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों तक पहुंच। बिजली की बंदिश से मुतासर इलाकों में शामिल मलीर जी एरिया का इलाका भी शामिल है, जहां दिन में कई बार घंटों की लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों को परेशान करके रख दिया है। खवातीन का कहना है कि भारी भरकम बिल आते हैं, लेकिन बिजली के आने जाने का कुछ पता नहीं। घंटों बिजली की आंख मचोली ने जहाँ मुख्तलिफ मसाइल से दो चार कर रखा है, तो वहीं पानी की नेमत को भी दूर कर दिया है। बिल इतने भेज रहे हैं, 2 घंटे बत्ती आती है, 3 4 घंटे बत्ती जाती है, तो कैसे गुजारा करें? बच्चे छोटे छोटे, गर्मी कितनी है और बंद घर हैं। 4 घंटे 3 घंटे लाइट नहीं होती है, तो किस तरह से हम लोग ज़िंदगी, ना पानी से, ना गैस से, ना बिजली से, हर चीज़ से परेशान है हम लोग। बिजली तो होती ही नहीं है, 3 घंटे नहीं होती है। मकसद ये कि बिल भी तो माफ़ करें, बच्चों के काम नहीं है, क्या करेंगे बताओ, कैसे भरेंगे? कराची में सिटी रेलवे कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी, गुलबहार गार्डन, उस्मानाबाद, लियारी ओल्ड सिटी एरिया, न्यू कराची, मदीना कॉलोनी, सिंधी होटल, अल्लाह वाली, नागन चौरंगी के तरफ भी 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट्स और तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। कैमरामैन जहांगीर खान के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बगदादी का इलाका भी लोड शेडिंग से मुतासर है। इलाका मकीनों के साथ दुकानदार भी परेशान हैं। ताजर बरादरी ने लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का मुतालबा कर दिया है। काविश मेमन की रिपोर्ट। लियारी में लोड शेडिंग का बेकाबू जिन, कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर होने लगी। बगदादी में लोड शेडिंग के बाइस कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर होने लगी। दुकानदारों का कहना है कि 10-12 हज़ार के बिल आते हैं मगर बिजली नहीं आती। लोड शेडिंग की वजह से कारोबार करना मुश्किल हो गया है। लोड शेडिंग में बहुत मुतासिर हो रहा है। कम से कम 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ पे, और बहुत ही शदीद ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। लोड शेडिंग के अलावा भी लाइटें यहाँ पे जाती है, तो हम तो बहुत मुतासिर हैं लाइट की वजह से, और बिल भी हमारे पास बहुत आते हैं। दुकानदार का कहना था कि जो बिल अदा कर रहा है उनको तकलीफ ना दें, बल्कि जो बिल अदा नहीं कर रहा उनका कनेक्शन बंद कर दिया जाए। अब आपको बताएं कि दूरियां खत्म करें, शहर कायद को तरक्की दें। मेयर कराची का सियासी मुखालफिन के लिए मुफाहमत का पैगाम। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि ये शहर हमने और आपने ठीक करना है। KMC हर जगह आपके साथ खड़ी होगी। हमने बंस रोड पर फूड स्ट्रीट बनाई, लोगों का कारोबार बढ़ा। कोई इस शहर में काम करता है, लोग अदालत में चले जाते हैं। तमाम खामियों के बावजूद मामलात हल करने की कोशिश करनी चाहिए। गवर्नमेंट कभी भी कोई काम अकेले कर नहीं सकती है जब तक पब्लिक उसको ओन ना करे, और बिकॉज ऑफ द डिस्कनेक्ट इतने शुकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं कि हर आदमी ये सोचता है कि पता नहीं गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट है। मैं पब्लिक स्पेसेस का बड़ा एडमायरर हूँ, और जब गवर्नमेंट कोई पेडेस्ट्रियन स्पेस बनाने की कोशिश करती है तो वहाँ आप जैसे कुछ 10, 12, 20 लोग, 100 लोग खुश होते हैं कि यार ज़बरदस्त काम हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं 10-12 लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं यार ये काम क्यों हो रहा है। और फिर कोई जाता है अदालत, कोई जाता है किसी टीवी चैनल के पास, और वो शिकायत लगाते हैं कि पता नहीं मुर्तज़ा वहाब का क्या इंटरेस्ट था ये काम करने में। और इस तरह की फिर रुकावटें हमारे लिए क्रिएट होती हैं। वो बंस रोड जाते थे खाना पीने के लिए, वो शौकीन है जगह, मशहूर है जगह। तो जब मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मैंने कहा यार लाहौर में पेडेस्ट्रियन स्पेस हो सकती है, फूड स्ट्रीट हो सकती है, तो कराची में क्यों नहीं। तो मैंने कोशिश की कि उसको हम एक फूड स्ट्रीट में कन्वर्ट करें। इरशाद वाज द डिप्टी कमिश्नर साउथ। इरशाद को मैंने बुलाया, मैंने कहा जी DMC, KMC, सिंध गवर्नमेंट, हम सब मिलके काम करते हैं, लेट्स ट्रांसफॉर्म दिस प्लेस इनटू अ फूड स्ट्रीट। हमने काम स्टार्ट किया, बड़े अच्छे बैनर्स लगे, अच्छी लाइटिंग, इल्यूमिनेशन की, जगह को साफ़ किया, सड़क को ठीक किया, दुकानदारों ने बड़ा सपोर्ट किया। नतीजा ये हुआ कि ऑल ऑफ अ सडन बर्न्स रोड पहले कुछ मखसूस लोगों के मैप में थी, जब वो पेडेस्ट्रियनाइज उसको कर दिया गया तो पूरे शहर के मैप में आ गए, और लोग जो कि तसव्वुर नहीं करते थे कि हम बंस रोड की तरफ जाएंगे, उन्होंने भी जाने का फैसला किया और लोगों ने जाना शुरू किया। एंड आई टेल यू, उसका फ़ायदा वहाँ की लोकल इकोनॉमी को इतना हुआ कि वहाँ के दुकानदार मुझे बताते हैं कि हमारा बिजनेस 3 गुना 4 गुना बढ़ गया। दे वर सो ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट। मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, DC का कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना हमारी कोई दुकान थी वहाँ पे, ना हमारा कोई रेस्टोरेंट था, ना हमारा कोई प्लान था रेस्टोरेंट खोलने का। हमने कहा एक शहर में इजाफा होगा। तारीफ बड़ी हुई, लेकिन मैंने कहा ना 2-3 लोग नाराज़ हो जाते हैं कहीं ना कहीं। वो कोई एक साहब कोर्ट में चले गए, कोर्ट में गए, उन्होंने इरशाद सोल्डर को बुला लिया। कैसे कर लिया भाई आप लोगों ने ये? वो इतनी बेइज्जती हुई कोर्ट में अफसरान की, तो मैंने कहा बस छोड़ो यार, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। जमात इस्लामी ने पानी बहरान के खिलाफ पीर को 10 मकामात पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं 4 अगस्त को वाटर कॉरपोरेशन के दफ्तर के बाहर धरना देंगे।
मसाइल हल करने के बजाय चलते हाइड्रेंट बंद किए जा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद माजिद। कराची में बरसों से जारी पानी के मसले पर जमात इस्लामी मैदान में आ गई। अमीर जमात इस्लामी कराची ने पीर से शहर के 10 मकामात पर एहतजाज करने की धमकी दे दी। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने इल्जाम लगाया कि कराची वालों से पीपी को वोट ना देने का इंतकाम लिया जा रहा है। कब्जा मेयर ने कराची वालों का पानी बंद कर दिया, नाजायज हाइड्रेंट्स बंद किए जाएं। सिर्फ इस जुर्म की सजा है कि ये पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करता। इस शहर के लोग पीपल्स पार्टी की इस परफॉर्मेंस और करप्शन से नफरत करते हैं। इस शहर के लोग पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करते हैं। टैक्स देने वाले इसी मेन स्ट्रीम शहर के लोग होते हैं और आप उनका भी पानी काट देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची ने बिजली की बढ़ती कीमतों पर भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बोले ज़राअत पर टैक्स लगाने के बजाय बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया, लोगों के लिए बिल भरना मुश्किल हो गया है। अपने ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, गरीबों पे टैक्स लगाएंगे, मिडिल क्लास लोगों पे टैक्स लगाएंगे, बिजली के बम गिराएंगे। अभी लोगों के लिए बिजली का बिल अदा करना मुश्किल हो गया है। अब ये 7.5 7.5 रुपए इजाफे के साथ जब अगस्त का बिल आएगा तो लोगों का हाल देखें आप। जबकि इसमें इन्होंने कहा मंजूरी दे रहे हैं ये 28-29 तारीख को और कह रहे हैं कि 1 जुलाई से लागू होगा। हाफिज नईम ने शहर कायद के बासियों से अपील की है कि वो अपने हुकूक के लिए आवाज उठाने के लिए जमात इस्लामी का साथ दें और कल पानी की बंदिश के खिलाफ होने वाले एहतजाज में शरीक हों। कैमरामैन अजलान शिपा के साथ मोहम्मद माजिद, सिटी 21। सिंध असम्बली का मुलतवी शुदा इजलास अब 2 अगस्त को होगा, जिसमें अहम बिल पेश किए जाएंगे। आइंदा हफ्ते सिंध असम्बली से अहम कवानीन मंजूर करवाए जाएंगे। सिंध असम्बली में निगरान सेटअप के बारे में कवानीन लाने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक निगरान सूबाई कबीना के मुतालिक कानून साजी की जाएगी। सिंध असम्बली की नौमुंतखब खातून अपोजिशन लीडर का 2 अगस्त पहला दिन होगा। ज़राए के मुताबिक सिंध असम्बली के इजलास में PTI के मुनहरिफ अरकान की शिरकत का इम्कान है। अब आपको बताएं कि महंगाई ने शहर कायद की आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। कराची में दूध आज भी 230 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। मुतलका इदारे भी दूध की सरकारी कीमत 180 रुपये में फ़रोख्त कराने में नाकाम हो गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट। शहर कायद में महंगाई का तूफान, आम आदमी परेशान। कमिश्नर कराची दूध सरकारी कीमत 180 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त कराने में नाकाम दिखाई दिए। शहर कायद में दूध आज भी 230 रुपये किलो पर फ़रोख्त किया जा रहा है। दूध फरोशों ने कीमतों में इजाफे की वजह माल महंगा मिलने को करार दिया। कहते हैं बाड़े से 200 रुपए फी किलो दूध खरीद रहे हैं। ऐसे में सरकारी कीमत पर दूध कैसे फरोख्त करें। पिछली पहली को जो उन्होंने लास्ट टाइम रेट बढ़ाया था 230 रुपये पूरे शहर में हो गया था, तो 2-3 दिन के बाद तकरीबन आधे शहर में 220 पे दूध फरोख्त हो रहा है, लेकिन उन्होंने रेट कम नहीं किया। पर मन 400 रुपये दुकानदार अपनी जेब से नुकसान करके जो है बाड़े वालों को पूरा कर रहा है। 220 रुपये बेच रहे हैं। कुछ दुकानों पे शहर में जो बड़ी दुकानें हैं वो नुकसान नहीं कर रही, वो 230 ही बेच रही हैं, लेकिन हमारे इलाके में यहाँ ऑलमोस्ट 220 रुपये फरोख्त हो रहा है दूध। शहरियों ने भी कमिश्नर कराची से महंगाई को काबू ना करने का शिकवा किया। कहते हैं कमिश्नर कराची हमें कहीं भी काम करते हुए नजर नहीं आते। दूध 150 रुपये किलो तक फरोख्त किया जाना चाहिए। दूध के रेट तो दिन ब दिन ही बढ़ते जा रहे हैं। अब हर बंदा रेट बढ़ाता जा रहा है दुकानदार, लेकिन कमिश्नर कुछ कर ही नहीं रहे। आते हैं वो रेट लिस्टें लगा कर चले जाते हैं, दोबारा कभी तवज्जो दी ही नहीं है कि इस रेट पे बिक भी रहा है या नहीं। ये तो कम से कम 150-180 पे होना चाहिए। हर बंदा 230-220 का बेच रहा है। बुनियादी ग़िज़ाएँ बच्चों के लिए जैसे दूध वगैरह हैं, ठीक है, सब्ज़ियाँ वगैरह हैं, ये बिल्कुल ख़रीद से जो है ना इंसान की बाहर हो चुकी हैं। लिहाजा ये है कि हम जो हमारे ओहदेदार हैं, जो हुक्मरान हैं, उनसे हम जो है रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि वो लोग तो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं वैसे, चाहे हुकूमत हो चाहे वो हमारे सूबाई उसके अंदर हो, तो लिहाजा हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि इन चीज़ों को देखें। कमिश्नर कराची से रिक्वेस्ट है कि ये दूध की जो हमारी बढ़ती हुई महंगाई है इसको भी थोड़ा कंट्रोल करें। महंगाई शहरियों पर बारिश की तरह बरसने लगी है। शहरियों ने कमिश्नर कराची से अपील की है कि वो दूध की सरकारी कीमत पर फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करें। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ आयमा खान, सिटी 21 न्यूज़। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला आज भी जारी रहा। आलू, प्याज और टमाटर के दाम में रद्दोबदल ना हुआ।
प्याज 60 और आलू 80 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। तफसीलात मोहम्मद माजिद। कराची में सब्जी की कीमतों में मिला जुला रुझान रहा। आलू 80 रुपए, टमाटर 120, जबकि प्याज 60 रुपए फी किलो पर मुस्तहकम। बैंगन भी अपनी पुरानी कीमत 120 रुपए फी किलो पर दस्तियाब है। भिंडी 20 रुपए कमी के बाद 220 और फूल गोभी 80 रुपए कमी के बाद 140 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। महंगाई के मारे आवाम कहते हैं गोश्त पहले ही पहुंच से दूर था, अब सब्जी भी कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है। 1000 का नोट दुकान पर लाते हैं लेकिन मालूम नहीं कहाँ जाता है। 1000 का नोट लेकर आए और 2 किलो प्याज 2 किलो टमाटर लेके घर जाने 1000 रुपए दे दें। सब्जी की तस्वीर लेके अपनी हांडी में डाल के पानी डाल के उबाल के और उस पानी में रोटी खा लो, बाकी सब्जी तो खरीदने की नहीं रही। दूसरी जानिब अदरक और पालक की कीमतों में इजाफा देखने को मिला। अदरक 40 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 800 रुपए फी किलो पर फरोख्त की जा रही है और पालक 80 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 140 रुपए फी किलो पर दस्तियाब है। शहरियों ने मुताल्लिका इदारों से सब्जियों की सरकारी कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जहांगीर के साथ मोहम्मद माजिद, सिटी 21। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तलबा की मअतली के खिलाफ एहतजाज जारी है। तलबा ने प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताल शुरू कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। दाऊद इंजीनियरिंग के 12 तलबा को फीसों में इजाफे पर आवाज़ उठाने पर मुअत्तल कर दिया गया था, जिस पर जामिया के तलबा की जानिब से कराची प्रेस क्लब पर भूख हड़ताल कैंप लगाया गया। तलबा का कहना था कि मुअत्तल होने वाले 12 तलबा के कुछ दिनों में इम्तिहानात हैं। मुताद्दिद बार एहतजाज के बावजूद यूनिवर्सिटी हुक्काम कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। स्टूडेंट्स को निकाल दिया गया, एक्सपेल किया है 12 स्टूडेंट्स को और उनके अभी एग्जाम्स होंगे अगले हफ्ते, तो उन स्टूडेंट्स ने फ़ीस भी दी है। अब ये तो मतलब बड़ा ही अजीब मामला है कि अगर स्टूडेंट्स ने किसी भी मुतालबे के ऊपर कोई बात रखी भी है तो कोई कमेटी बननी चाहिए, इंतज़ामिया को कहीं कुछ मतलब एक बातचीत करनी चाहिए, कुछ नहीं डायरेक्ट सस्पेंशन के ऑर्डर जारी कर दिए। बहुत आमराना रवैया। तलबा ने वाज़ेह किया कि जब तक तलबा को यूनिवर्सिटी में इम्तिहान देने की इजाज़त नहीं दी जाती एहतजाज जारी रहेगा। आपने न कोई कमेटी बिठाई, न कोई नोटिस स्टूडेंट्स को जारी किए, बल्कि आपने अपने पावर का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स को एक्सपेल कर दिया। हमारा यही मुतालबा है कि ये इस चीज़ को सीरियस लिया जाए, क्योंकि सीरियस नहीं लिया जाएगा तो हमें भी तो अपने बच्चों को नहीं छोड़ना, तो हम उसी शिद्दत के हिसाब से उनको रिस्पांस देंगे। तलबा ने मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द मुतालबात मंजूर किए जाए और तलबा को इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त दी जाए। TMCs में अफसरान की तकर्रर तैनातियों के मामले पर मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे और लोकल गवर्नमेंट बोर्ड आमने सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी के टाउन और यूसी चेयरमैन भी TMCs में तबादलों और तकर्रियों से नाला हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की ट्रांजिशन पीरियड में सूरत हाल गाँव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए जैसी हो गई। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की जानिब से TMCs में अफसरान की धड़ाधड़ तैनातियां की गईं, तो गडा अप टाउन काउंसिल ने करारदाद मंजूर कर ली, जिसमें तैनातियां मुंतखब नुमाइंदों की मंजूरी से किए जाने की मंजूरी दी गई। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने करारदाद को गैर कानूनी करार दे दिया, जिसके खिलाफ चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने सिंध हुकूमत और मेयर कराची से मदद तलब कर ली। हमें राइट दिए जाए। मैं अपील करूंगा सिंध गवर्नमेंट से, मैं अपील करूंगा मिनिस्टर लोकल बल्दियात से, मैं अपील करूंगा मेयर साहब से। और मैं आपको बताऊं कि मेयर साहब से मेरी इस हवाले से बात भी हुई है कि हम इस वक्त इन क्राइसिस में हैं, तो हमारी मदद की जाए। यूसी चेयरमैन बल्दिया टाउन इलाही बख्श बलोच के मुताबिक टाउन की कौंसिल कौमी और सूबाई असम्बलियों के मसावी दर्जा रखती है, जिसकी करारदाद को मंजूर करना हर इदारे की जिम्मेदारी है। इस वक्त जो कौंसिल हमारी बनी है ये हमारी असम्बली है, जिस तरह सेनेट में है, जिस तरह सूबाई असम्बली में, जिस तरह कौमी असम्बली में जो चीज़ें असम्बली के अंदर पास की जाती हैं उसी पे अमल दरामद किया जाना चाहिए। रूल तो ये कह रहे हैं, अगर इस पे अमल दरामद नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो असम्बली को नहीं मान रहे हैं। मेरी सिंध हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि कौंसिल में जो भी चीज़ें पास की जाएं उस पे अमल दरामद करवाना लाजिम है। चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब के मुताबिक तमाम सर्विसेज के हामिल अफसरान व मुलाजमीन की तकर्री मुंतखब नुमाइंदों की मंजूरी से ही अमल में लाई जा सकती है। देखें, ये तो हमारे रूल 121 के तहत इस चीज़ को साफ वाज़ेह है कि जो भी टाउन चेयरमैन और करारदाद इसमें पास होगी तो उसके तहत ही सारे काम होंगे, लेकिन ये बार बार इस चीज़ की वायलेशन कर रहे हैं और इन्होंने
जो मेरे ख्याल से इन्होंने भी जो है नहीं पढ़ा है रूल के, उस रूल में क्या कह रहे हैं और इन्होंने उसके ऑर्डर निकाल दिए हैं। मुंतखब नुमाइंदों के एतराज़ात के बाद लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की जानिब से तबादलों और तकर्रियों का सिलसिला रुकेगा या नहीं, सूरत हाल चंद रोज़ में वाज़ेह हो जाएगी। कैमरा टीम के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।